morning students. So in the last class I was discussing about the different ways of expressing concentration of a solution, and in that part I had discussed about the ways like strength, normality, molarity, and just I was discussing about what is mole fraction of a component in a solution. है ताले आमे मु लास्ट क्लास रे कौन पढ़ाउथिली ना गोटे मोल फ्रैक्शन काहाकू कहंती ताले मु कहिथिली मोल फ्रैक्शन of individual components of a solution are determined. Suppose a solute A is dissolved in a solvent B. That is, there are two components in a solution. Solute is A and solvent is B. So we will calculate what is the mole fraction of A and what is the mole fraction of B. So what is the definition of mole fraction? Mole fraction of a particular component of a solution is the ratio of number of moles of that component to the number of moles of all the components present in the solution. So if Na is the number of moles of A in the solution, Na is number of moles A hela ethi kono. Suppose I have taken a solute A and B is solvent. So Na is number of moles of component A, that is Na ame dharile. Au Nb kono? Suppose number of moles of component B in the solution. Tale what will be total number of moles in the solution is Na plus Nb, that is total number of moles in the solution. So what will be the mole fraction of A, which is written as Ka A, that is ratio of number of moles of A to total number of moles present in the solution. Similarly, mole fraction of B is equal to number of moles of B divided by total number of moles in the solution. Again, here two components are present, that is A and B. So sum of the mole fraction of the components is 1. These things I had told you. So we will solve two problems basing on this concept. या पूर्वरु मु तुम गोटे कथा कहि लास्ट क्लास रे यू आर डिस्कसिंग आस्किंग हाउ द मोलारिटी ऑफ वाटर बिकम 55.5 हैला ताले बर्तमान इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर आई थिंक द क्वेश्चन वाज इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर is 1 gram per cc. I think this was the question. If the density of water is 1 gram per cc, what is the molarity of water? And you are asking what is the procedure for finding the molarity of water if the density is given as this. So density is equal to mass by volume. So mass is 1 gram per cc. 1000 you multiply, this is 1000 gram by 1000 cc. Yes or no? So 1000 cc means 1000 ml. 1 cc is 1 ml. So 1000 ml is 1 liter. So molarity is number of moles per liter of the solution. So number of moles kete bahar kariba? So number of moles is equal to mass of 1000 ml of water, that is 1000 gram. Mass by molecular mass, number of moles is equal to mass by molecular mass. So 1000, that means 1 liter water ro mass kete hela 1000 gram. बुझी पारलो 1 cc, cc means cubic centimeter. 1 cc is 1 ml. 1000 cc is 1000 ml. 1000 ml is 1 liter. ताले गोटे ml लो मास हला 1 gram. 1000 ml लो मास केते हला 1000 gram. ताले number of moles is equal to mass by molecular mass of water is 18. हला ताले molarity is equal to
1000 by 18 into 1000 by V, volume of solution in that is 1 liter, that is 1000 ml. So এটা কটি গলা, that is 55.5. So if density of water is 1 gram per cc by question ले भी बेले बेले लिखाई था 1 kg per meter cube, then molarity of water is 55.5. That means number of moles per liter of water is 55.5 moles. है बुझी पार. So if you want to write it down, you may write it down. है लिखिदेल. Then write down one question. We will solve two numericals on mole fraction using mole fraction. The question is, a solution is prepared by adding 360 gram of glucose to 864 gram of water, to 864 gram of water. Hello. Question is, calculate the mole fraction of glucose. Calculate the mole fraction of glucose. आउ तुमको गोटे डाटा गिवेन अच्छी. मोलार मास ऑफ ग्लूकोज इज 180. है बुझी पार. ताहले ग्लूकोज रो मोलार मास दे देछि 1 मोल रो मास दे देछि. ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ग्लूकोज केते देछि 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रे. ग्लूकोज एड कले केते ग्राम ऑफ वाटर रे 864 ग्राम ऑफ वाटर रे. ताहले आमे गोटे सॉल्यूशन बनेइले जो थरे सॉल्वेंट किए वाटर. वाटर केते ग्राम अछि 864 ग्राम. ग्लूकोज से केते ग्राम अच्छी 360 ग्राम. ताले एथिरे सॉल्यूट किए ग्लूकोज, वाटर किए सॉल्वेंट. ताले गोटे सॉल्यूट आउ गोटे सॉल्वेंट अच्छी. है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज. आमको केवल सॉल्यूट्र मोल फ्रैक्शन मागी, सॉल्वेंटर मागी नाही. ताले हमको जहाँ रिक्वायर्ड अच्छी आम सेटा बाहर करवा. ताहले आगे लेख तुमको रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन ना तुमको मागी मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज. G is for glucose. है ताले मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन. दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. यस और नो. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट that is glucose G is equal to number of moles of G divided by total number of moles in the solution. total number of moles माने सेतरे अछि किए solute और solvent. ताले number of moles of solute plus number of moles of solvent. solvent is water. सेतमे मु W लिखछि एठी G लिखछि. हैला ताले वर्तमान हमको मास देछि solute और solvent रो. ताले ताकू नै कि आमे वर्तमान कोन बाहर करिबा number of moles. ताले मास गिवेन थिले नंबर ऑफ मोल्स केमती बाहर करिबा मास बाय मोलिकुलर मास दैट इज नंबर ऑफ मोल्स. यस और नो. ताले नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू कौन ना मास केते देइची 360 एटी मास गिवन अछि मोलार मास इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मोलिकुलर मास दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मास इन केस ऑफ एलिमेंट्स ताले मोलिकुलर ग्लूकोज ता गोटे कंपाउंड ताले मोलार मास माने इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मोलिकुलर मास ताले मोलिकुलर मास केते 180 so this is what the value is number of moles of glucose in the solution is 2 moles then we will find out what is number of moles of water yes or no tale number of moles of water pai mass of water is given in the question that is 864 yes or no what is molecular mass of water number of moles means mass given mass divided by molecular mass of the compound जहार तमे बाहर करूच मास जो क्वेश्चन ले गिवन अछि डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ताले एटा केते हबो 1872 144 48 ताले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 48 हैला ताले वर्तमान आमे बाहर करिबा व्हाट इज मोल बर्तमान पाई गले ताले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज पाई गले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पाई गले वैल्यू गुडा को पुट कर देगी मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज बाहर कर दो इन द सॉल्यूशन सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज बाहर ला केते 2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दैट इज 2/50 yes or no that is 4/100 that is 0.04 हला ताले मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज 0.04 हला बुझ पारलो तुमको क्वेश्चन ले खाली मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मागी नेक्स्ट आ गोटे क्वेश्चन लिखिबा लिखि दियो एटा जदि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी मागी था ताले कौन कर था एटी एटी बार एटी 48 डिवाइडेड बाय 2 + 48 ताले 48/50 जहार मागी तार नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन हला जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को ये मु GW लिखी तुम एमती लिखबनी ग्लूकोज वाटर लिखिदेव है पिला माने गोटे तुम गोटे इनफॉरमेशन परहैप्स नेक्स्ट मंडे है तुम जदि किसी चेंज न हुए अदरवाइज तुम नेक्स्ट मंडे देयर विल बी एन एग्जाम फॉर यू ऑन चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कहीं तुम आज मोस्ट प्रोबेबली बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सरीज आउ तुम क्वेश्चंस 25टा रहिबो इच क्वेश्चन 4 मार्क्स रहा आउ या विषय डिटेल्स मु कहीदेवी आउ कमिंग क्लास रे नेगेटिव मार्किंग रहिबो कि नहीं दैट आई विल इन्फॉर्म यू लेटर एतिकी जानी था मोस्ट प्रोबेबली योर एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन मंडे है आउ फुल चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बुझ पाल ताले आउ गोटे क्वेश्चन देख मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट
in aqueous solution of 30% NaOH. Calculate mole fraction of solute in aqueous solution of 30% NaOH. बुझिपारल? Calculate mole fraction of solute in aqueous solution of 30% NaOH. ताहले वर्तमान तमे मोल फ्रैक्शन ऑफ कहार तुमको मागी आंसर को बाहर करिवो सॉल्यूट रो सॉल्यूशन कौन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH. एक्वस सॉल्यूशन माने वाटर सॉल्वेंट. एक्वस सॉल्यूशन माने सॉल्वेंट इज वाटर. सॉल्यूट इज किए ना सोडियम हाइड्रोक्साइड. ताले सॉल्यूट किए हला सोडियम हाइड्रोक्साइड आ सॉल्वेंट किए हला वाटर. है सॉल्वेंट है वाटर. ताले तुमको कौन मागी ना मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 30% NaOH. एटा केमती करिवो एटा सेटा पूर्व क्वेश्चनटा जो आमे कले आमर डायरेक्टली ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूट मास ऑफ द सॉल्वेंट देइथिला. तेणु मास बाय मॉलिक्यूलर मास बाहर करिकि आमे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आमे बाहर कर दउतले. तापरे आमे पुट करिकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाहर करथले. ताले एठी जेहेतु डायरेक्टली देइनी एठी कोन देइछि 30% NaOH. ताले गोटे टोटाल सॉल्यूशन टाकू जदि आमे 100 ग्राम धरिबा ताहले NaOH रो मास केते 30 ग्राम. बुझी पारलो हला. ताहले वर्तमान आमे कोन लिखिबा मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज NaOH 30% अच्छी माने सॉल्यूट अच्छी केते ग्राम 30 ग्राम. ताहले जदि टोटाल 100 ग्राम सॉल्यूट रहिला 30 ग्राम सॉल्वेंट केते रहिबो 100 माइनस 30 दैट इज 70 ग्राम. हला ताले मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर कहीं ना टोटाल मास ऑफ सॉल्यूशन है केते 100 ग्राम. ताले 100 माइनस 30 दैट इज 70 ग्राम. है ताले तुमको मागी कौन ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ताले वर्तमान बाहर करिबा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट माने कि NaOH कौन होबो ना मास बाय मॉलिक्यूलर मास. मास केते देखिले 30. सॉल्यूट किए सोडियम हाइड्रोक्साइड. मॉलिक्यूलर मास केते सोडियम रो 23 ऑक्सीजन लो 16 हाइड्रोजन लो 1 दैट इज 30/40 दैट इज 3/4.75. है तापरे कौन बाहर करिबा मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. है सॉल्वेंट केते नंबर ऑफ मोल्स ना मास मास है 70 बाय मॉलिक्यूलर मास. है ताहले 18 30 54 10 64 16 160 ताहले केते 18 टा 144 है पुणी 16 160 18 टा 144. है बुझीपार ताहले वर्तमान बाहर करदबा. देखुथुब रे कौटी बुलबाल होथुब देखुथुब. देन नेक्स्ट ताहले वर्तमान बाहर करिबा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केते बाहरिला 0.75. टोटाल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केते बाहरिला 0.75 प्लस 3.88 दैट इज 0.75 डिवाइडेड बाय 8 5 13 3 नहीं गला 4.63. है पुट करिकी तामाने एडी केते बाहरला 75 डिवाइडेड बाय 463. आर वैल्यूटा बाहर कर दब 0.16. दिस वैल्यू विल बी 0.16.
है कटोनी 750 डेसिमाल पकईदे तेणु 750 1 तापर आसीज पॉइंट सॉल्व करके देखिए दिस वैल्यू विल बी 0.16 है small fraction of solute in aqueous solution of 30% NaOH is 0.16. Mole fraction has no unit because it is ऊपर रहिला कौन number of moles of solute divide जी भी number of moles of one component divided by number of moles of all the components तेणु एटा हेतु गोटे नंबर यार कौन सी यूनिट नाही हला जोठी दीटा सेम जिनसर सेम यूनिट वाला रेसीओ थाए से तो ऑब्वियसली यूनिट रही आ ये तो गोटे नंबर है बुझिपार देखीदेल समस्ते देन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म को जीवा व्हाट इज आउ दीटा रहिला तमर मोलालिटी आउ परसेंटेज हैला ए दीटा हेले तमर सरी गला वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ताले आपरे लेख ताले स्ट्रेंथ थिला 1 मोलारिटी 2 नॉर्मालिटी 3 मोल फ्रैक्शन 4 एटा हला 5 हैला ताले मोलालिटी देखो सेटा थिला मोलारिटी एटा हैला मोलालिटी मोलारिटी इज डिनोटेड एज कैपिटल M मोलालिटी इज डिनोटेड एज स्मॉल m कंफ्यूज हबनी हैला ताले मोलालिटी व्हाट इज मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हाट इज मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैला किंतु मोलालिटी एक्सप्रेस हुए इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट ताले व्हाट इज मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ना मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन is the number of moles of solute per 1 kg of present for 1 kg of solvent. वन केजी माने 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है ताले मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी बुझीपार नॉर्मालिटी मोलारिटी सबू केस रे एठी आसुथिला वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर हैला एठी किंतु आसिला मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट फॉर 1 kg और पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट हैला ताले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दैट इज इक्वल टू मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन है बर्तमान देख
मोलारिटी आ मोलालिटी भितर कोटा बेटर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन एटा गोटे एंट्रांस रे क्वेश्चन आसे जे कौन पाई मोलालिटी इज चूजेन एटा मोलालिटी टाकू बेसी कंसीडर करा जाए कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करिया पाई काहे कि ना मोलारिटी हैला टेम्परेचर डिपेंडेंट कहीं ना मोलारिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन तेणु वॉल्यूम मोलारिटी रे गोटे वॉल्यूम टर्म रोचे डिनोमिनेटर रे टेम्परेचर अनुसार वॉल्यूमटा चेंज हो जाए से टेम्परेचर चेंज हेले मोलारिटी रो वैल्यूटा चेंज हो किंतु मोलालिटी रे कौन सी वॉल्यूम टर्म नाही एडी मास ऑफ सॉल्वेंट अच्छी मास ता टेम्परेचर डिपेंडेंट नुहे दैट इज व्हाई मोलालिटी रो वैल्यूटा टेम्परेचर चेंज हेले चेंज हुए नाही दैट इज व्हाई मोलालिटी इज ए बेटर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन देन मोलारिटी है बुझी पाल ताले वर्तमान आमे मोलालिटी उपरे गोटे न्यूमेरिकल करिबा कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन एटा लिखि दियो देले न्यूमेरिकल गोटे करिबा सरला ताले गोटे एपटे गोटे क्वेश्चन लिखि दउची कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग फाइव 5.3 ग्राम of anhydrous sodium carbonate anhydrous sodium carbonate in 400 ग्राम of water है in 400 देखिया एटा सॉल्व करिया को ट्राई कल किए करि पारुछ कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इन 4 ग्राम ऑफ वाटर गोटे मिनिट दौची तुम मैंने देख निजे सॉल्व करि पारुछ कि नाही है एक्सप्रेशन तो जान लो मोलालिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है ताले 100 ग्राम सॉल्वेंट रो मास है 100 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg है सो हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल यू जस्ट ट्राई योरसेल्फ देखो है पारुछ आसुची क्या को
देख तुमको आसला मोलालिटी बाहर करियार अच्छी ताले वर्तमान कौन देइछि मास ऑफ सॉल्यूट देइछि केते ना 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इन 4 ग्राम ऑफ वाटर हैला ताले आमे 4 ग्राम वाटर रे केते नहींचे ना 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम एनहाइड्रस माने सेतरे तुम ऐड करा को वाटर बिल्कुल नथिबो नले वॉल्यूम टा चेंज हे जिवो ना तेनु आगे सोडियम कार्बन मास ऑफ वाटर टा चेंज हे जिवो जदी सोडियम कार्बोनेट रे वाटर रहिला ताले से वाटर पुनी ये 4 ग्राम मिसे कि 4 ग्राम रहिबोनी यार वाटर रो मास टा चेंज हे जिवो सेति पई कोन करा गला आगे सोडियम कार्बोनेट टा को ड्राई करिकी एनहाइड्रस वाटर फ्री करि दिया गला हैला ताले केते ग्राम 5.3 ग्राम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को 4 ग्राम वाटर रे ऐड करागला तुमको बर्तमान बाहर करिया को पड़िबो द मोलालिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ताहले वर्तमान मोलालिटी पाई मते कोन जानिया दरकार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एठी किए सोडियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हैला ताहले वर्तमान आमे स्टेप बाय स्टेप जिबा वर्तमान देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है किए ना सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वर्तमान देख ताले नंबर ऑफ मोल्स है मास केते देइछि गिवन मास 5.3 है मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट दुईटा सोडियम अच्छी 23 दूने 46 कार्बन 12 ऑक्सीजन 3 × 16 48 ताले केते होछि रे 5.3 46 12 60 और 58 ये 48 106 ताले 5.3 बाय 106 दैट इज इक्वल टू केते हबो 0.05 हला देन कौन बाहर करिबा ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाहरी गला वर्तमान कौन बाहर करिबा ना मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी तुमको मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम रे देइछि ताले मास ऑफ एडा केमती बाहर करली जानि पारलो ना केमती बाहर कर दबा देखो एडा 53/10 * 106 हां कि नहीं 5.3 टा हला 53/10 * 106 ताले वर्तमान 53 रे 106 काटी देली 2 ताले केते हला 1/20 1/20 इज इक्वल टू 5/100 5/100 इज इक्वल टू 0.05 सब बेले एमती तुम निजे सॉल्व करिवो हला ताले केते बाहरला 0.05 ताले वर्तमान मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी तुमको ग्राम रे देइछि केते देइछि ना 4 ग्राम ग्राम को केजी गले आमे कोन करिबा सेथिरे 1000 डिवाइड करि दबा ह ना नहीं हला ताले 4/1000 दैट इज इक्वल टू 0.004 हला बुझ पारलो ताले वर्तमान कोन बाहर करिवो मोलालिटी सो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केते बाहरिला ना 0.05 मास ऑफ सॉल्यूट केते बाहरिला ना 0.004 हला ताले वर्तमान तुम या को सॉल्व करि दबो तळे जदी 4 करिवो ऊपर केते हबो 50 हला सो दैट इज इक्वल टू 25 एटा 4 ग्राम ना क्वेश्चन रे बोले 400 ग्राम देछि ना यस इट इज 400 ग्राम हला इन द क्वेश्चन इट इज 400 ग्राम 4 ग्राम थिले एमती करके बाहर कर दबो हला ताले क्वेश्चन रे देछि 400 ग्राम ताले 400/1000 ताले कटि गला दीटा शून्य 4/10 दैट इज 0.4 हला ताहले वर्तमान बाहरिला काहे कि कहलो मोडा बाहर कली मास ऑफ सॉल्वेंट काहे कि ना हमें मोलालिटी एक्सप्रेशन रे हमर दरकार मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हला ताहले वर्तमान मोलालिटी इज इक्वल टू कौन हम ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.05
डिवाइडेड बाय 0.4 दैट इज 5 बाय दीटा डेसिमाल ये गुणी देली दीटा को माने डेसिमाल उठाइबा मुझे चाहूँगी ताले 5 बाय 40 यहाँ इजी तुमको ये उठेदेव 1 बाय 8 दैट इज 125 बाय 1000 0.125. This is the molality of the solution. Molality is expressed denoted as small m. है एटी जदि ऑलरेडी दे दी था सॉल्वेंट रो मास टा केजी रे तो मैं डायरेक्टली पुट कर दे था. सॉरी लिखिदेल समस्ते भैल्यूटा एमती केते रखनी सब को डेसिमाल करदेव बेटर है. और डेसिमाल करने तुम इजी है तुम केते गुणिले तलटा को 1000 बा 100 बा 10 करदेव देले तुमको सुविधा हो सेतिकिटा जीरो छाड़ी तुम बसई सेतिकिटा पॉइंट छाड़ी तुम डेसिमाल बसई दो. तापर आसला लास्ट 5 बोधे 6 बोधे परसेंटेज है परसेंटेज एटा है अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन पुनी परसेंटेजटा आम डिफरेंट डिफरेंट वे रे परसेंटेज बाहर करवा गोटे है मास टू मास परसेंटेज आ गोटे है मास टू वॉल्यूम परसेंटेज तापर है वॉल्यूम टू मास परसेंटेज तापर है वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज जो अनुसार क्वेश्चन ले देइची से अनुसार वैल्यू पुट करके आमे बाहर करवा है ताले मास टू मास परसेंटेज माने मास ऑफ सॉल्यूट जदि गिवेन अच्छी मास ऑफ सॉल्यूशन गिवेन अच्छी ताहले सेठी तमे
मास परसेंटेज बाहर कर परसेंटेज माने इंटू 100 है ताले मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम देन मास टू वॉल्यूम परसेंटेज केमती केतेले काढिबो जेतेले मास ऑफ सॉल्यूट थिबो गिवन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100 है तेणु गिवन डाटा उपरे को यूज करके तुम आइदर मास टू मास परसेंटेज बाहर कर पारिबो नहले मास टू मास वॉल्यूम गिवन थिले मास टू वॉल्यूम तापरे वॉल्यूम टू मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टू मास तेणु मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 1000 तापरे वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100 है ताले परसेंटेज पुणी 4 प्रकार गोटे है मास टू वॉल्यूम वॉल्यूम टू मास वॉल्यूम टू वॉल्यूम है फास्ट जोड़ा थी न्यूमरेटर सेकेंड आसो डिनोमिनेटर से अनुसार कौन वैल्यू तुमको गिवेन अच्छी से अनुसार क्वेश्चन जदि मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन अच्छी ताले तुमको मास टू मास परसेंटेज क्वेश्चन आस कर है से अनुसार आम परसेंटेज बाहर कर देखी दियो या गोटे क्वेश्चन भी अच्छी करवा है केमती आम तुम कौन थी केमती बाहर कर गोटे न्यूमेरिकल करके तुमको देखी दूची लिखिदेल समस्ते ताले बर्तमान गोटे न्यूमेरिकल करवा है गोटे क्वेश्चन लिख ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग adding 2 gram of a substance to 18 gram of water by adding 2 gram of a substance to 18 gram of water. हला
क्वेश्चन रे कौन मागी कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मास परसेंटेज माने मास टू मास परसेंटेज है तुमको कौन गिवन ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस टू 18 ग्राम ऑफ वाटर ताले सॉल्यूट रो मास देछि 2 ग्राम सॉल्वेंट रो मास देछि 18 ग्राम तुमको बाहर करिया को कहिछि मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट मास परसेंट मींस मास देछि तेनु तमे कोन बाहर करिवो मास टू मास परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन ताले लिखो mass percent of solute is equal to mass of solute divided by mass of solution into 100 है ताले mass of solute केते ना 2 mass of solution केते सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट रो मास है सॉल्यूशन लो मास कहीं ना ये कौन अच्छी मास ऑफ सॉल्यूशन है ताहले एठी है 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन एठी किसी नंबर ऑफ मोल्स करिया दरकार नहीं है इंटू 100 ताले 2/20 इंटू 100 है ताले कटी गला दैट इज केते परसेंट 10% मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट है 10% एटा सब इजी बाहर करवा डायरेक्टली तुम वैल्यू पुट कर न्यूमेरिकल कर जेहेतु ये तुम मास परसेंट लिखिदे ये खाली 10 लिख कौन है ऑलरेडी आम ये परसेंटेज लिखिदे ना सो दिस इज 10 है सो तुम ऑलमोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट सरीगला इट इंटू 100 अच्छी है ताले वर्तमान तुमको दुईटा कथा एग्जाम कही दूची स्टार्टिंग रु तुम्हें जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ीच आमे फास्ट पढ़िले कौन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर रे टेबुलटा मन रखीदब आ सब जो डेफिनेशन गुड़ाक दिखाई टिके मन रखिदब है एलिमेंट क्या कहती कंपाउंड क्या कहती मिक्सचर क्या कहती समस्त गोटे गोटे एग्जाम्पल एगुड़ाक सब मेटाल नॉन मेटाल टिके मन रखीदब विथ डेफिनेशन शुणुच समस्त शुणुथब है क्लासिफिकेशन पर आमे को पर्सन को आसते एटम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल रे पुणी एटोमिसिटी डाइएटोमिक टेट्राएटमिक ट्राइएटोमिक डाइएटोमिक मोनोएटोमिक एगुड़ा सब पढ़ीदेव एटोमिसिटी एटम क्या कहती मॉलिक्यूल क्या कहती एगुड़ाक पढ़ीदेव है तापर एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास आमे क्या कही एलिमेंट ना से एलिमेंट जो एलिमेंट एटॉमिक मास बाहर करवा से एलिमेंट गोटे एटमटा 1/12 ऑफ C12 आइसोटोप एटम ठारू केते गुण भारी सेटा है से एलिमेंट एटॉमिक मास इन AMU जदि AMU टाको आमे ग्राम रे नबा गोटे ताहले एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास 12 AMU 12 ग्राम न्यूमेरिकल वैल्यू 12 समान किंतु AMU टा ग्राम संगे समान नुहे ग्राम एटॉमिक मास माने 1 मोल ऑफ एटम्स रो मास गोटे एलिमेंट रो जो एटॉमिक मास इन ग्राम ता माने से एलिमेंट रो 1 मोल ऑफ एटम्स रो मास किंतु एटॉमिक मास इन AMU माने से एलिमेंट रो गोटे एटमटा 1/12 C12 आइसोटोप एटम ठारू केते गुण हेबिया सेटा हला से एलिमेंट रो एटॉमिक मास इन AMU देन सेमती मॉलिक्यूलर मास हला कोन ना गोटे सब्सटेंस रो मॉलिक्यूलर मास हला से सब्सटेंस रो गोटे मॉलिक्यूल 1/12 C12 आइसोटोप एटम ठारू केते गुण हेबिया सेटा हला तार मॉलिक्यूलर मास इन AMU मॉलिक्यूलर मास को तले ग्राम रे एक्सप्रेस करबा दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास माने मास ऑफ 1 मोल of the substance that is called molecular mass
है बुझिपार वन मोल गोटे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं कि तार मास बाहर कले इन ग्राम सेटा है तुम मॉलिक्यूलर मास से मोलार मास संगे समान मॉलिक्यूलर मासटा मोलार मास माने कौन 1 मोल एटम थिले एटम मॉलिक्यूल थिले मॉलिक्यूल जदि जो आमे कहली मु मोलार मास ऑफ ए सब्सटेंस जदि सेटा कंपाउंड थिबो ताले मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है बुझिपार जदि एलिमेंटा गैसियस थिबो ताले सेठी आमे देखिबा मॉलिक्यूलर फॉर्म अदरवाइज तुम मॉलिक्यूल कंपाउंड गुड़ाक सब मॉलिक्यूलर फॉर्म रे थाए ताले गला एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास है तापर आसला मोलार मास तापर कौन आसला ना आमे एवरेज एटॉमिक मास थिला है एगुड़ाक सब सरला आमे कौन पढ़ी थिले ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रे डेफिनेशन गुड़ाक मन रखिया दरकार नहीं रिलेशनशिप मन रखीदेव न्यूमेरिकल केमती सॉल्व करिवो मन रखीदेव है बुझिपार तापर आसला तुमर ये कनसेंट्रेशन रे डेफिनेशन एक्सप्रेशन आउ न्यूमेरिकल है जी कराई से तुम खातार भल से प्रैक्टिस करदेव कले तुम एग्जाम हम एग्जाम फाइनल येटा मु तुमको कमिंग क्लास रे कहीदेवी कि तुम भाविक रखीद योर एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन मंडे है ताले थैंक यू ऑल आज ये आमे मु नेक्स्ट क्लास रे आउ गोटे नुआ चैप्टर नहीं कि आसबि ताले एबे जिबा डाउट क्लियरिंग पर्सन।